In 1526, Babur began establishing the Mughal dynasty in India. Babur's general Mir Baqi built the Babri Masjid in his honor. Some Hindus believe he destroyed a temple to build Babri. They also believe that the temple marked Lord Ram's birthplace. ये कहानी नहीं, सच्चाई है। अयोध्या में श्री राम जी के कई मंदिर बनवाए। केवल अयोध्या में ही सीताराम के 3000 मंदिर थे। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की स्थिति खराब होने लगी और इसी समय के अंतराल में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने इनमें से कई मंदिरों को ठीक करवाया और फिर आने वाले कई सौ सालों तक मंदिर यूं ही बने गए। साल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 1528 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती है और माना जाता है कि बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह पर एक मस्जिद बनवा दिया, जिसको बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाने लगा। For millions and millions of people, if someone has to be an inspiration after thousands of years, there must be something. If we don't see that something, then we will say it's an obsession, it is this, that. And anyway, coming to that Ram temple, so Ram had a series of problems during his life. Even after thousands of years, he still has real estate issues. ये वही दौरान है जब भारत पर मुगल शासन की जड़ें बहुत सशक्त और गहरी थी। बाबरी मस्जिद बनने के तकरीबन 190 सालों बाद साल 1717 में राजा जय सिंह द्वितीय, जिनके मुगल संबंध भी ठीक थे और जिन्हें हिंदुओं और अयोध्या के मायने पता थे, वो कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए, मगर सब असफल रहता है। लेकिन वह मस्जिद के पास ही एक राम चबूतरा बनवा देते हैं जहां हिंदू पूजा और अर्चना कर सके। ज्योग्राफर जोसेफ थेलर ने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात बताई है। ये वही समय था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर राम चबूतरे पर पूजा किया करते थे। By the mid-1980s, it was impossible for the Indian public and our politicians to ignore the Ayodhya movement. 19th February 1981, Meenakshipuram, Tamil Nadu. 200 Dalit families converted to Islam. A collective, spontaneous decision, it was prompted by years of oppression by the landed elite and rattled the keepers of Hindu morality. Isn't it divisive? Why is it divisive? Because it cuts across two communities. Really? It's been a bloody tale. And by bloody, I mean a tale of blood, a tale of killings, a tale of riots. What's happened in the last 800 years is the bloodiest tale that's ever happened in any part of the world ever. What happened to the Jews with Adolf Hitler? What happened to Native Americans with North America? What happened in Cambodia? All these things are nothing compared to what happened in India in these 800 years. And if you don't think that is bloody, and there is no any kind of remorse in people who committed those things, then just people want a small piece of real estate back for their asta, and that is divisive. Why is it divisive? The Dharam Sansad, or the religious parliament organized by the VHP, was the very first time that rebuilding a Ram temple was listed as an objective to preserve the Hindu Dharam. It was followed up by a bike rally, again organized by the VHP, from where car sevaks from across the country arrived in Ayodhya, came to the Sarayu river, took a dip and pledged to rebuild the temple. मंदिर गिराए जाने के 250 साल बाद भी हिंदू इस बात को भुला ना पाए थे कि जिस जगह राम जन्म स्थान था, अब वहां मंदिर नहीं बल्कि एक मस्जिद है। साल 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने यह दावा किया कि बाबर ने 1528 में श्री राम जी का मंदिर ध्वस्त किया और उस जगह पर एक मस्जिद बनवाई थी, और इस दावे ने देश की सांस्कृतिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अनेक महत्वपूर्ण सवाल सामने खड़े कर दिए। While the VHP was on its Ayodhya mission, in Delhi, the Muslim clergy too hit the streets in protest. A 62-year-old woman, Shah Bano, won the right to alimony from the Supreme Court. Rajiv Gandhi then tried to calm the clergy down by passing a law that undermined the Supreme Court ruling on Shah Bano. The BJP accused Rajiv Gandhi of indulging in appeasement politics. So a section of the Hindus were outraged at the outrage by a section of the Muslim clergy.
So Rajiv Gandhi decided to pacify the Hindu lobby against accusations of indulging in appeasement politics. It is real estate. But temple is built by devotees' hearts. The land is just real estate. But it's sacred for them because it is identified as a birthplace and obviously there's no question mark whether there was a temple or not. It is not one temple. Thousands of temples were raised because that's the policy, that it must be raised and it will be raised in future also. If we don't protect it, it will be raised in future also. Even now in Pakistan, Bangladesh is happening. Why should it be divisive? कई अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसी कलाकृतियों के मिलने का जिक्र किया था। साल 1838 में मॉन्टगोमेरी मार्टिन ने एक रिपोर्ट दी जिसमें यह बताया गया कि मस्जिद में जो पिलर्स हैं वो मंदिर से ही लिए गए हैं। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद विवादित जमीन पर अब नमाज ही नहीं पूजा भी होने लगी, जिससे माहौल और तनावपूर्ण हो गया। 1853 में जब वाजिद अली शाह अवध पर राज कर रहे थे, उस समय पहली बार सांप्रदायिक हिंसा हुई। निर्मोही अखाड़े ने बाबरी मस्जिद को अपने नियंत्रण में ले लिया और 1855 में आधिकारिक तौर पर बाबरी मस्जिद को 2 भागों में बांट दिया। मुसलमानों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत 1855 के बाद मिली, पर अब हिंदू अंदर नहीं जा सकते थे और तभी हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा और अर्चना शुरू कर दी। इसी के चलते साल 1857 में निहंग सिखों ने हिंदू संतों के साथ मिलकर मस्जिद के अंदर घुसकर पूजा और हवन करवाया। आज से कुछ 138 साल पहले साल 1885 में यह मामला अदालत तक पहुंचा। तब निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे पर छतरी लगाने की अर्जी डाली, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया। कुछ आगे चलते ही साल 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते हैं। बाबरी मस्जिद की एक दीवार टूट जाती है जिसका पुनर्निर्माण कराया जाता है, पर वहीं नमाज बंद करा दी जाती है। इस दौरान अंग्रेजों का शासनकाल था। उनके एजेंडा में राम मंदिर को लेकर कोई पहलू नहीं था। न तो संघ इतना मजबूत था और न ही मीडिया और न धार्मिक संगठनों के लिए कोई लामबंदी थी। फिर भी हिंदुओं में भक्ति की बौछार थी, जो बाबर के 400 साल बाद भी राम मंदिर के लिए अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। Why can't everybody settle down to whatever nonsense they believe in and do their stuff? I can live without any belief system, but maybe people need some belief systems, so they have their beliefs. But how come I think my belief is right and yours is wrong and you must die just for believing whatever I don't believe? If you don't address that and you say all these words, it's just… what is this? Where does this come from? In February 1989, the VHP announced it would conduct the Shilanyas for a Ram Mandir. As soon as they made the announcement, donations from across the world poured in. Ramshilas or bricks were collected from across Indian villages, wrapped in saffron cloth and then worshipped, brought here to Ayodhya to be part of the Shilanyas ceremony, which was blessed by the Rajiv Gandhi government. The High Court had ordered that no construction could take place on this disputed land, but the VHP was ready to defy the court's orders. As a result, the atmosphere was communally charged up. The government had to intervene and Prime Minister Rajiv Gandhi deputed Union Home Minister Bhuta Singh to travel to Ayodhya and try and pacify the VHP. Up until now, the Congress had appeared to be opposed to the Shilanyas. But on 8 November 1989, just 2 days before the proposed Shilanyas, the State Advocate General said that the High Court order could be interpreted to allow the Shilanyas. Now this was legally debatable, but the Congress suddenly appeared to be in favour of the VHP. The upcoming election could have had something to do with this change of heart. Despite having 404 Member of Parliaments in a 533-seat strong parliament, the Congress was fighting the election with its back against the wall. The Rajiv Gandhi government at the time was under attack on 3 fronts. The Bofors scam was unravelling, the political situation in Kashmir and Punjab was getting out of control, and VP Singh was on the verge of quitting the Congress cabinet and forming the Jan Morcha. The Shilanyas movement has evolved a great deal from the mid-1980s. From just a collection of red bricks from across Indian villages, it is now a collective of artisans who continue to work in the hope that a Ram temple will be built. But it is the Shilanyas, which was possible because of the Rajiv Gandhi government,
which marked the complete politicization of the Ram Mandir movement. These three icons, Shiva, Rama, Krishna, thousands have been temples have been demolished. Nobody's asking because it's impossible to refix the history, and nobody thinks we can refix the history, nor is anybody interested. These three icons, where their basic presence was, these three iconic places they're asking for. Why can't it be just offered without a fight? Where is a fight? And nobody is fighting, they're only going to the court. Court is not a fight, it's a legal process. Why are you calling legal process a fight? 1947 में देश की आज़ादी के बाद मस्जिद का समय सीमित खुलता था और राम चबूतरे पर भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित थी जहां लोग पूजा किया करते थे। लेकिन देश आज़ाद होने के बाद भी राम मंदिर के बनाए जाने की उम्मीद का माहौल नहीं था। फिर 1949 में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों को हैरान कर दिया। 23 दिसंबर 1949 को सुबह विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती है, जिससे पता चलता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि रात को अचानक मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति प्रकट हो गई, जबकि मुसलमान पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा गया। इस घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग वहां जुट जाते हैं और मामला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास पहुंच जाता है। वहां के मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश दिया जाता है कि मूर्ति को वहां से हटाया जाए, जिस पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि भीड़ इतनी है कि मूर्ति हटाई गई तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। 27 दिसंबर को के नायर के पास दोबारा वही आदेश जाता है, जिसके जवाब में वे इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफे के साथ वो सरकार को ये सलाह भी देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां एक जालीनुमा गेट लगा दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू को यह सलाह पसंद आती है और वो ऐसा ही करने को कहते हैं। साथ ही साथ वे के नायर का इस्तीफा भी मंजूर नहीं करते। 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद फैजाबाद जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल कर रामलला की मूर्ति की पूजा का अधिकार मांगते हैं और इसके बाद आगे आने वाले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड उस जगह को अपने हवाले करने का अदालत में दावा करते रहते हैं, मगर कुछ बदलाव नहीं होता। 1976 में पहली बार साइट को एक्सकवेट किया जाता है, जिस पर आगे चलकर के मोहम्मद ने यह भी बताया है। तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जन्म मंदिर का पिलर्स थे। तो 11th and 12th सेंचुरी का जो मंदिर का जो पिलर्स थे उसी को मस्जिद में रीयूज किया। मस्जिद जिन 12 पिलर पर बनी हुई थी वो मंदिर के ही अवशेष हैं और साल 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बहुत हद तक बदलने लगती हैं। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें, और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। The temple is few thousand years old. Nobody knows exactly first temple what age it came up. Then developments happened over millennia. But about 500 years ago, it was demolished. Systematically, a lot of temples were demolished upon which other religious places were built with the same, using the same construction material. Pull down this and build something else out of it. संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सब अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि राम मंदिर आंदोलन में तेजी आए। 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में यह तय होता है कि मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकले, मगर उसी वर्ष श्री इंदिरा गांधी जी की देहांत के बाद यह कार्यक्रम टाल दिया जाता है और साल 1986 में कुछ ऐसा होता है जिससे देश में राम मंदिर के आंदोलन की दिशा ही बदल जाती है। शाहबानो केस की जजमेंट के बाद देश के मुसलमान भड़क जाते हैं और उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में एक कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं और राजीव गांधी के इस निर्णय के बाद हिंदू समुदाय नाराज हो जाता है। अब हिंदुओं को खुश करने के लिए वह बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करवाते हैं। अब इस फैसले से मुसलमान पक्ष फिर नाराज हो जाता है और 6 फरवरी 1986 को मुस्लिम लीडर्स बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनवाते हैं।
1989 में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को विवादित ढांचे के पास शिलान्यास करने की अनुमति दी। 1990 की शुरुआत में द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को उनके समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार द्वारा अरेस्ट कर लिया जाता है। 25 सितंबर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिसके दौरान ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जिस दिन अयोध्या में यात्रा का समापन होना होता है, बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को बेकाबू करने की कोशिश में मुलायम सरकार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है और कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। तारीख 6 दिसंबर 1992, जिसे शौर्य दिवस के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं। उस वक्त कल्याण सिंह यूपी के मुख्यमंत्री और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे। कल्याण सिंह ने अदालत को यह भरोसा दिया था कि कार सेवकों द्वारा मस्जिद के ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने पुलिस को भी आदेश दिया था कि भीड़ पर गोली न चलाए, पर हुआ वही जो निश्चित था। 6 दिसंबर 1992 की दोपहर 1:55 पर पहला गुंबद गिराया जाता है। दोपहर 3:30 बजे करीब दूसरा गुंबद गिराया जाता है और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए गए और उसी दिन उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद चले दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जान गंवाई और न जाने कितने और लोगों ने देश के अलग अलग प्रांतों में राम मंदिर की लड़ाई के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। What happened in Ayodhya on 6th was very unfortunate. It should not have happened. We tried to prevent it, but we did not succeed. We are sorry for that. Because a section of car sevaks, they went out of control and they did something which was not to be done. A clear assurance was given that no damage will be allowed to be caused to the disputed structure. And that assurance was not kept up. That's why we are sorry. जब 90 के दशक में भाजपा दोबारा केंद्र में आई, तब तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। देश भर के अलग अलग कोनों में चल रहे मामलों को एक जगह लाया गया और वो था इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1993 में सरकार ने एक 67.7 एकड़ जमीन के अधिग्रहण करने का अध्यादेश जारी किया। साल 2002 में वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट बाबरी मस्जिद विवाद पर सुनवाई शुरू करता है। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने कहा जाता है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कर दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था, उसके नीचे मिले 10वीं शताब्दी के मंदिर की अवशेष से यह साबित होता है कि वहां पहले एक मंदिर था। 2011 में यह मामला देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है, परंतु वहां भी 7 सालों तक कोई सुनवाई नहीं होती। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से इस मामले को हल करने की कोशिश की जाती है, मगर जब कोई फैसला नहीं निकलता तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश दिया जाता है कि मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों को अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लाया जाए। 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो जाती है। ये चुनाव दरअसल ऐसे वक्त भी हो रहा है जहाँ पर जिस वक्त राम मंदिर की सुनवाई चल रही है। ऐसे में ये मुद्दा उठना लाजमी है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर सभाओं में भी आपने इस मुद्दे को उठाया। जिस तरह से चीज़ें चल रही है, आप क्या रोक रखते हैं इस पूरी चीज़ों को? नहीं, ये तो राम मंदिर का, बाबरी मस्जिद का जो केस है, वो शायद आज उस पर अब तो चैम्बर में हियरिंग है आज, वो उसके बाद हियरिंग ख़त्म हो जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट को उसके ऊपर जजमेंट देना है। अब जजमेंट कैसा आएगा, क्या आएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जानते हैं। बट हमारी उम्मीद ये है कि ऐसा जजमेंट आए जो भारत में रूल ऑफ लॉ को मजबूत कर दे, क्योंकि जिस तरीक़े से बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में मूर्तियां रखी गई, जिस तरीक़े से बग़ैर पार्टीज़ को बताए इंजंक्शन दे दिया गया, जिस तरीक़े से धोखाधड़ी से ताले खोले गए,
और ताले खोलने वाले जज साहब ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने इसलिए ताले खोलने का ऑर्डर दिया क्योंकि कोर्ट के प्रेमिसेस पर एक काला बंदर बैठा था जो किसी के खाने देने पर खाना नहीं खा रहा था, और जब मैं घर गया तो दोबारा बंदर बैठा था, तो मैंने समझा कि ऊपर वाले से मुझे कुछ इशारा मिल रहा है। तो इस तरह से अगर ये तो नहीं होना चाहिए, और हमको उम्मीदें नहीं होगा, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो जजमेंट आएगा वो रूल ऑफ लॉ को मजबूत करेगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ, आज इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। अगर रूल ऑफ लॉ मजबूत होगा तो बहुत अच्छा है, इसको हम उम्मीद करते हैं। और 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला सुनाया जाता है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। उस फैसले में 5 जजों की बेंच सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के 1510 में राम मंदिर जाने का जिक्र भी करती है, और उसके साथ कंपनसेशन के तौर पे सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन अयोध्या के अंदर दिए जाने का ऐलान करती है। और इसी साथ 5 फरवरी 2020 को ट्रस्ट के गठन होने के बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाता है। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलातो सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद हैं जिसमें दिल्ली की सुनेरी वाली मस्जिद भी है। मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना, तुम्हारे दिल से जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया, तो ये आपको इन चीजों पर गौर करना है। अपनी मिली हमियत को, मिली अपनी ताकत को बरकरार रखिए। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। यह कहानी थी 500 साल चले संघर्ष की, धार्मिक अस्तित्व की और अटूट विश्वास की। और 22 जनवरी 2024 का दिन प्रतीक है उन बलिदानों का जो शतकों से एक ही स्वप्न देखते थे, जो था भव्य राम मंदिर, श्री राम जी की जन्मभूमि अयोध्या में।